या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणां वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. We are the luckiest on this earth to be the part of such Indian cultural heritage. We pray to each and everything. Just now we prayed to the goddess of knowledge, Ma Saraswati. She who is as fair as kundan flowers. She is as white as moon. She is garland of kundan flowers. Her hands are adorned with the beautiful veena. Brahma, Vishnu and Mahesh praised her. She is colored white. And many other devas praised Ma Saraswati. Here we pray to Ma Saraswati to please grant us the great sense of knowledge and remove all our inertia. Welcome everyone on this Bajrang series. Rasayanam Institute present Bajrang series English का फंडा with Tirmal sir. Yes बच्चा लोग, you are very welcome on this online platform of Rasayanam Institute. Okay, and I am very fortunate to represent the Rasayanam Institute on this beautiful platform of YouTube in front of all of you. Just now we got the blessings of Ma Saraswati, the goddess of knowledge, by her shlok. So now we start by getting that positivity power. We shall start with the today's session, episode number 4 of English Ka Funda with Tirmal sir, hashtag English Ras. Okay, so we are over the so many episodes, and just now we have reached to the episode number 4 of English Ka Funda. And thank you so much all my viewers कि आप लोग यहाँ पे आए हो, ठीक है, in our segment of English Ka Funda. Okay, before I start today's session, let me tell you that we are doing the online session of standard 7 to 8 and 8 to 9 moving students and online free training sessions. You can catch us on at Rasayanam Institute. Contact us. The contact details you will be have at the end of this session. Okay, betu? Yes. So chalo, let us begin the today's session. Before I start today's session, in the last lecture we have seen the 3 types of sentences. Into which tense beta? Which tense? Yes, you are correct, in simple present tense. Okay, so look at here. In simple present tense there were how many types of sentences? I'll write here. There are 3 types of sentences we have seen. Okay beta, and those 3 types of sentences are, number 1 was assertive, that we have already seen in the last lecture, and the other 2 are, number 1 is negative, okay, and number 3 is interrogative. Clear? Okay, so just now we shall start with the very second, because we have already talked about the first one, assertive. Okay, I'll just tell you the formula of the assertive type of sentences. What were those formula? So subject plus verb plus object, that we have seen in the last lecture. Bolo, clear है बेटू?
क्लियर है बेटू? ओके चलो, सो दिस इज द वे we have to study. First of all, we have to learn the entire thing, and on that based we shall proceed ahead. बोलो clear છે? एकदम clear છે? Okay, so let us begin with the second type of sentences today, and those are negative type of sentences. I'll tell you one thing. Whenever you write or whenever there is a negative type of sentences in simple present tense, you cannot put just not. You cannot put just not. What you have to put? You have to put either do or you have to put does. So either you have to put do or does, and later on you have to put compulsorily not. नाउ एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी है बेटा, वो ये है कि अगर आप डू या फिर डस लिखते हो और उसके बाद नॉट लिखते हो, डजंट मैटर नॉट है या नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव में तो नॉट होना ही चाहिए, बट ये जो सेंटेंस बोल रहा हूं इसके लिए आपको एक चीज कंपलसरी याद रखनी है, वो ये है कि अगर सेंटेंस में डू या फिर डस आता है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में डू या फिर डस आता है, तो बेटा कंपलसरी डू या फिर डज के बाद सेंटेंस में हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करना है. बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक है बेटू, आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करना है. बोलो क्लियर की क्लियर है? चलो, so what will be the formula for the negative type of sentences? So I'll write the formula here. क्या होगा फॉर्मूला बेटा? चलो देखो इधर, सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट दिया होगा वो लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस डू और डस, सब्जेक्ट प्लस डू और डस प्लस नॉट. क्लियर है इतना? लेकिन उसके बाद कंपलसरी आप लिखोगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन आप लिखोगे ऑब्जेक्ट. बोलो क्लियर की क्लियर है बेटा? बोलो क्लियर है? चलो, सो दिस विल बी द फॉर्मूला. लेकिन सर कहां पे डू नॉट और कहां पे डज नॉट, तो वो तो पता होना चाहिए हमको, तो चलो वो भी पता कर लेते हैं फटाफट. सिंगुलर प्लूरल, चलो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन. अरे भगवान, ये हर बार क्यों आप मेरे से 3 ही लिखवाते हो? कभी तो 2 लिखवाया करो. चलो देखो, फर्स्ट सेकंड और उसके बाद आएगा बेटा थर्ड. बोलो क्लियर है? चलो देखो इधर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई. फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन होता है? वी. सेकेंड पर्सन सिंगुलर कौन होता है? यू. सेकेंड पर्सन प्लूरल यू. यस, ठीक है, ग्रेट. चलो थर्ड पर्सन सिंगुलर, यस, ही, शी, इट. लेकिन ही, शी, इट ये थोड़ा नीचे हो जाएगा. आई शुड राइट सम ऊपर. जस्ट अ मिनट बेटू. देखो इधर, ये जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन को कौन सा है? द थर्ड पर्सन इज ही, शी और इट. लेकिन ही, शी, इट के अलावा भी एक चीज आती है. ही, शी, इट के अलावा आएगा बेटा सिंगुलर नेम. क्या आता है? सिंगुलर नेम. ठीक है, और यहां पे आएगा दे या फिर आएगा प्लूरल नेम्स. चलो ठीक है, सो दिस इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, दिस इज थर्ड पर्सन प्लूरल. क्लियर है बेटू? तो चलो देखो इधर, अगर आई, वी, यू, दे नेम्स, क्या आई, वी, यू, दे नेम्स है, तो हर जगह क्या आएगा? डू. 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 बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक है बच्चा? ओके, सो नाउ ये हर जगह पे डू आएगा, लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नेम होता है, वहां पे आप लिखोगे डस. ठीक है बेटा? लेकिन या तो डू हो या तो डस हो, हमेशा आपको उसके बाद तो क्या आएगा? हमेशा आपको अगर डू या फिर डस सेंटेंस में आता है तो आपको हर बार फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लिखना है. बोलो क्लियर की क्लियर?
ओके बेटू, तो सॉरी, ठीक है। तो चलो सिंगुलर में 1 2 3, प्लूरल में 1 2 3 बोलो, क्लियर है? ओके बेटा, चलो तो जाने दो इसको, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना वो ले सकते हो, या फिर आप लिख भी सकते हो वीडियो पॉज करके, दैट इज अप टू यू। आई एम जस्ट रिमूविंग दिस जस्ट नाउ। चलो देखो इधर, नाउ हम सेंटेंस के ऊपर आते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल्स, लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, और जो मैंने अभी बताया वो आपको याद रखना है। चलो देखो इधर, सबसे पहले हितेश, हितेश डैश कैच प्लस नॉट द बॉल। चलो देखो इधर क्या दिया है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट में देखना है, ब्रैकेट में आपको कैच प्लस नॉट दिया है, दैट मीन सेंटेंस कौन से टाइप का बनाना है आपको? नेगेटिव टाइप का बनाना है। बोलो क्लियर है? नेगेटिव टाइप का सेंटेंसेस आपको बनाना है। अभी सब्जेक्ट क्या दिया है? हितेश। हितेश मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो बोलो डू या फिर डस? डस। नॉट दिया है मतलब डस नॉट आएगा। चलो क्लियर है। उसके बाद क्या दिया है आपको? इधर कैच दिया है, तो कैच का क्या होगा? एस की एस लगेगा बेटा? नहीं लगेगा। तो क्या होगा इधर? द आंसर विल बी हितेश डस नॉट कैच द बॉल। एक बात याद रखना, डू नॉट या फिर डज नॉट पूरा लिखने कौन बैठे? इस जमाने में किसके पास टाइम है बेटा? इतना लंबा लंबा कौन लिखता है? ठीक है, हम तो नहीं लिखते। तो उसके लिए हमारे पास एक इलाज है। यहाँ पे आप सिंपल डज नॉट का डजंट या फिर डू नॉट का डोंट कर सकते हो। बोलो क्लियर है? ओके चलो, इसके लिए तो ये हो गया। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा होता, दे डैश प्ले प्लस नॉट क्रिकेट, ठीक है, ओके, तो व्हाट विल बी द आंसर? क्या होगा? देखो यहाँ पे कैच प्लस नॉट दिया है आपको, तो कैच सॉरी प्ले प्लस नॉट दिया है, ओके, और यहाँ पे दे दिया, तो दे के साथ क्या आता है? डू। क्या आता है? डू। तो क्या होगा? दे डू। लेकिन डू नॉट पूरा लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो क्या होगा पूरा? डोंट, और उसके बाद प्ले का प्ले वैसे का वैसा। बोलो क्लियर की क्लियर? क्यों प्ले का प्ले वैसा का वैसा? भाई मैंने पहले ही बता दिया कि अगर डजंट हो या फिर डोंट, दैट मीन्स कि अगर डू हो या फिर डज हो, आपको हर बार फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लिखना है। बोलो क्लियर की क्लियर? क्लियर है बेटा? ओके, तो फटाफट इसको भी आप लिख लो या फिर इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसे टाइप के सेंटेंस में आपको हर बार याद रखना है कि नेगेटिव में अगर आपको डू डज लिख रहे हो आप, तो हर बार आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लिखना है, और कहां पे डू नॉट आएगा और कहां पे डज नॉट आएगा वो भी आपको याद रखना है। बोलो क्लियर है बेटा? ओके चलो, तो लेट अस मूव टुवर्ड्स दी लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, एंड दोज आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से है बेटा? चलो तीसरे टाइप के सेंटेंसेस के ऊपर हम जाते हैं, वो है इंटेरोगेटिव। चलो इंटेरोगेटिव का आप जो फॉर्मूला है वो कैसे लिखोगे? इंटेरोगेटिव के फॉर्मूलास, सबसे पहले ये जो इंटेरोगेटिव है उसके अंदर या तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, ठीक है, नॉट द मेन वर्ब, ओनली हेल्पिंग वर्ब, या फिर डू और डस, या फिर WH वाले जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो आपको आगे लिखना होता है। बोलो क्लियर है बेटा? क्लियर है? वो आपको आगे लिखना होता है। तो समवॉट आप यहाँ पे या तो डू डज आएगा, या तो इज, एम, आर, या तो हैज, हैव, ठीक है, या तो WH और सॉरी या तो WH या फिर HW वाले वर्डिंग्स आपको लिखने होंगे। बोलो क्लियर है? और उसके बाद ये सारे वर्डिंग्स के बाद आपका क्या आएगा? यू विल बी हैविंग योर सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पीछे एक छोटी सी पूंछ, उसको बोलते हैं हम क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का ये जो पूंछ है वो तो आपको रखना ही रखना है, क्योंकि कौन सा सेंटेंस है बेटा? इंटेरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। बोलो क्लियर है? ठीक है, ओके, तो मैं एक आध दो एग्जांपल्स आपको दे देता हूं, एंड विल फिनिश आवर टुडेज सेशन। तो इसमें सिंपली क्या होगा? चलो देखो इधर, अगर मैं यहां पे लिखूं सिंपल डैश दे डैश
ब्रैकेट में आएगा प्ले और यहाँ पे आएगा क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। चलो मुझे बोलो, कहा दे के साथ क्या आएगा? डू की डस करेक्ट बेटा, डू आएगा। चलो सो डू दे, और मैंने पहले ही बताया अगर सेंटेंस में डू या फिर डस कुछ भी हो तो सेंटेंस में क्या आएगा? कौन सा वर्ब आएगा? वैसे का वैसा। करेक्ट, तो क्या होगा यहाँ पे? प्ले। बोलो क्लियर, पता चला? सो डू दे प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। अगर आपके पास कोई आपको पोजीशन दिखाना है, ओनरशिप दिखानी है कि भी तेरे पास ये कार है, तो आप यहाँ पे या तो हैज या फिर हैव का यूज कर पाओगे। दैट मीन्स हैज या फिर हैज आपको, हैज या फिर हैव आपको पहले लिखना है एंड लेटर ऑन यू हैव टू फ्रेम द एंटायर सेंटेंस लाइक दिस। ये पूरा आपको यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया गया है, ठीक है। अगर आपको किसी का एग्जिस्टेंस दिखाना है तो आपको कि भी वो खरेखर आप हो, इज इट यू, ठीक है, तो वैसे आप ये सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो। और एल्स WH और HW वाले वॉट, वेयर, वाई, व्हेन, ये सारे भी, ठीक है, क्वेश्चंस आप फ्रेम कर सकते हो। वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वो कैसे फ्रेम होते हैं दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट टाइम। जस्ट नाउ आप ये दोनों के फॉर्मूलाज याद रखो और कैसे सेंटेंस फ्रेम होते हैं याद रखो, ठीक है। बाद का सेशन हम लेटर ऑन एपिसोड नंबर 5 के अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं। टिल दैट एक और बात मैं आपको फिर से बता दूं बेटा कि हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन शुरू है, तो फटाफट आप अपना नाम उधर रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगी। एंड इफ यू वांट टू लर्न विथ मी पर्सनली, आई एम एट रसायनम इंस्टीट्यूट मणिनगर। यू आर वेलकम एट रसायनम इंस्टीट्यूट। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, stay home, stay safe, stay online, keep watching the Bajrang series. Goodbye.